الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے امت مسلمہ ہے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اصلاح کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں سبھی کو کہ نیک ہدایت پہ قائم اور دائم رہیں، لیکن آج کے حالات میں ایسے لوگ کیوں اس طرح سے بدل گئے ہیں، نہ راہ خدا، یاد خدا، غم خدا، ولی خدا، اللہ کے ولی خدا، یعنی وہ نہ آگے نہ پیچھے کچھ خیال نہیں کرتے، جو آتا من میں کہہ دیتا ہے، نہ ولی کا خوف، نہ خدا کا خوف، نہ رسول اللہ کا خوف، ہمارے نبی کا خوف نہیں، نہ اللہ کے ولی کا خوف نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے وہ۔ لیکن آج ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ انسان اپنے آپ کو خوف نہیں رکھتا، وہ اللہ پاک ان کو ہدایت فرمائے۔ آج کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، جہاں جہاں جاؤ وہاں نگاہوں کو، اپنے نگاہوں کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ایسے کیوں ہو گیا ماحول؟ میں تو کہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے راجنیتی کو چمکانا چاہتے ہیں، آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں محبت سب سے بڑی عمل کو کہا گیا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی بہترین عمل ہے تو وہ ہے محبت، آپس میں محبت کرو۔ ہمارے ہندوستان میں کوئی الگ نہیں ہے، ان کے مذہب کے لوگ، اپنے مذہب کے لوگ سب بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اس کے دھرم کو کچھ برا بلا بولو، اس کے دھرم پہ کچھ نہیں بولو۔ اللہ پاک اگر ان کو ہدایت دیں گے تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ ہم اگر اس کو برا بھلا کہتے ہیں یاد رکھے وہ بھی میرے اسلام پہ، ہمارے قرآن و حدیث پر برا بھلا کہیں گے، ہوتا ہے نا۔ لیکن آج کے حالات ایسے ہو گئے، پتھر کے پتھر سے جواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو وہ بھی پتھر ماریں گے، اگر کوئی اینٹ پھینکتا ہے وہ بھی اینٹ پھینکیں گے، یعنی اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا ہو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو سلام کا جواب دیا جائے، اگر کوئی گالی دیا جائے اس کو محبت کے ساتھ اخلاق سے بات کیا جائے تبھی تو اسلام پھیلے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں نبی کو، ہمارے نبی کو کتنے برا بھلا لوگ کہتے تھے، کیا اس کو وہ بھی کہتے تھے کیا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے بہت لوگ تھے، لیکن ہمارے نبی تو نہیں کہتے تھے ان کو برا بھلا، یہی کہتے تھے، یہی فرماتے تھے اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ ہمارا اسلام۔ آج ہم اور آپ کوئی بھی انسان اگر غیر مسلم کے علاقے میں اگر چلے جائے تو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کارن یہی ہے کچھ لوگ ایسے راجنیتک چمکانا چاہتے ہیں۔ پہلے کا وقت ایسا نہیں تھا۔ اگر ہم لوگ، کوئی بھی علماء کرام، کوئی اپنے ایمان والا مسلمان انسان اگر کوئی غیر مسلم کے علاقے اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی عزت ہوتی تھی، ادب کرتے تھے لوگ، مولانا صاحب اس کو کرسی دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا اگر کوئی جائے وہاں پر اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی کارن ہے، غلط نگاہ سے دیکھنے کے کارن یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ اس کو آپس میں محبت کو توڑ کر بیچ میں دیوار کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کون نے کیا اس طرح سے؟ جو راجنیتک چمکانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا ہندوستان ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہی میرا وطن ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बुलबुले हैं, क्या ये बुलबुले हैं, यही है हिंदुस्तान हमारा। याद रखें, अल्लामा इकबाल ने फरमाते हैं हिंदुस्तान जैसा कोई शहर नहीं, हिंदुस्तान हमारा वतन है, इसी से यही हम पैदा हुए हैं और इसी शहर में इसी मिट्टी में जाके दफन हो जाना है, इसी मिट्टी में दफन होना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब देखें अगर किसी को गंगा में जला दिया जाए तो उसकी जिस्म का राख, हड्डी का राख उस पानी में जाके बहा देते हैं, डाल देते हैं, मछली खाते हैं या कहीं बह के चले जाते हैं। लेकिन हम उस तरह से नहीं है, हम यहीं पैदा हुए और इसी मिट्टी में जाएंगे, इसी मिट्टी में जाएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। आज के दुनिया वालों को हो क्या किया है, बड़े बड़े वली किराम, अल्लाह के वली, उनके बारे में खिलाफ तुम्हारी कोई औकात नहीं, न बैठने की औकात, न चलने की औकात, न किसी को खिलाने की औकात नहीं, न किसी को सहारा देने की औकात नहीं है, और उसके बारे में खिलाफ जो अल्लाह के वली हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज है। तो मैं तो ये कहता हूं अभी भी वक्त है, टाइम है, इससे माफी मांग लो, आपकी माफी हो जाएगी। नहीं तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे ऐसे वली हैं, अगर हाथ उठा दिया जाए तो जलजला कब आ जाए हिंदुस्तान में कोई पता नहीं। अपने जिंदगी को इखलाक की तरह बनाए, अपने जिंदगी को गुलाब की तरह बनाए, अपनी जिंदगी को खुशबू की तरह बनाए, अपने जिंदगी को राह खुदा में डाले, अपनी जिंदगी को याद मुस्तफा में डाले, अपनी जिंदगी को गम खुदा में डाले, अपनी जिंदगी को इखलाक मोहब्बत खुदा में डाले, अपनी जिंदगी को वालिद और वालिदैन की जिंदगी में डाले, अपनी जिंदगी को इस्लाम में डाले, शरीयत में डाले। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं, याद रखें यही तो फजीलत है, यही तो मकाम है। अपनी जिंदगी बेकार है अगर राह खुदा में नहीं डालते, गने खुदा में नहीं डालते, याद मुस्तफा में नहीं डालते और जिक्र इलाही में नहीं डालते, कुरान मुकद्दस पढ़ने में नहीं डालते, तो ऐसी जिंदगी लानत है, बेकार ऐसी जिंदगी। आप और हम जितने लोग मेरे बयान सुनते हैं उनसे भी गुजारिश है, आप अपनी जिंदगी को गुलाब की तरह बनाएं। आप अपनी जिंदगी को अगर आप गुलाब की तरह बनाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे। जब आपके पास लोग आएंगे तो खुशबू की तरह मुअत्तर होगा, खुशबू महकेगी और उस खुशबू में खुशबू होगी और लोग फिर आपके पास आएंगे, इज्जत होगी, आपका जिक्र होगा, आपका चर्चा होगा। आपने देखा होगा कि एक गुलाब की खुशबू में, एक गुलाब के फूल में खुशबू होता है, अब जब वो सूख जाता है धूप में तो उसकी खुशबू चली जाती है। उसी तरह से इंसान को जब इज्जत होती है, जब बेइज्जती यानी वो जब इंसान में जलील होने लगता है तो उसकी इज्जत चली जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी को गुलाब की तरह बनाए, अपने हालात को गुजारे, अपनी जिंदगी को गुजारे। हम और आप उसके बारे में खिलाफ, उसके बारे में खिलाफ, उसके बारे में खिलाफ, इस तरह से करने से क्या फायदा आपको है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हत्ता कि आपको नुकसान होगा। याद रखें, अगर किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, उसका बुरा होने से पहले मेरा हो जाए। इसलिए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, किसी को बुरा भला मत कहें। बुरा भला गलत निगाहों से अगर उनको देखते हैं, याद रखें अगर आप उसके साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का फरमान है और अल्लाह पाक का वादा भी है। अगर तुम इखलाक मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हो
थोड़ी अमल पर यानी थोड़ी दौलत पर अपनी जिंदगी गुजारते हो, कयामत में आपके उस थोड़ी दौलत पर अल्लाह पाक राजी हो जाएंगे। अल्लाह पाक का वादा, अगर थोड़ी दौलत, अगर उस पर आप सब्र करते हो उस थोड़ी दौलत पर, अगर आपको उस थोड़ी सी दौलत पर सब्र करने की कोशिश करोगे, याद रखें कयामत के दिन रोज़ा हश्र में उस थोड़ी सी दौलत पर अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए। ये अल्लाह पाक का वादा है। आप किसी के पीछे मत भागो, वहां क्या है वहां क्या है। अगर देखा जाए, लोग नजरियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वहां क्या जरूरत है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़े बड़े नेता आके वहां सर को झुकाते हैं, झोली फैलाते हैं और दुआ मांगते हैं हमको बड़ी कुर्सी मिले, नेता हम बन जाए और जीत जाए, वोटों से हम जीते हैं, इस तरह से वहां जाके झोली फैलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बदबख्त, शैतान की औलाद, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां जा करके दरगाह के नीचे जा करके शिवलिंग खोजते हैं। कितने बदबख्त इंसान हैं, कोई बातें नहीं। और इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जो हमारा दौर भी आएगा। जब हमारा दौर आएगा, याद रखें अपने इस्लाम में, अपने मजहब में सिखाया गया है या किसी का मंदिर को मत तोड़ो। अपने इस्लाम में सिखाया गया है या किसी धर्म को गाली मत दो, किसी मंदिर को मत तोड़ो, उसका जहां धर्म है उसको और पालन करो, हत्ता कि उसको राह दिखा दो। अपने इस्लाम में ये सिखाया गया है। लेकिन वो लोग खुद के धर्म को ठीक से करते नहीं है, अपने धर्म का पालन तो करते नहीं है और दूसरों को धर्म को लेके चले। अपने धर्म को तो समेट नहीं सका, उसको तो पालन नहीं करता है वो, अब दूसरे का धर्म को लेकर के चलते हैं। वो वहां ये है, वहां ये है। याद रखे अल्लाह पाक इस पूरे कायनात को बनाया, तुम चूंटी की तरह हो। अल्लाह पाक का जब अजाब हाजिर होगा ना, कब तुम मिट जाओगे कोई पता नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है, आप समझ जाए और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाके तौबा करें, अभी भी वक्त अपनी माफी हो जाए। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए, बदबूदार नहीं बनाए। अच्छी जिंदगी बनाएंगे फिर आपके पास आएंगे। आप जिस तरह से इज्जत लेने चाहते हैं आपको उसी तरह से इज्जत मिलेगी। मैं अपने नजर से बहुत ऐसे लोगों को देखा हूं जो अपने इस्लाम को जो धर्म है उसको पालन करते हैं। गैर मुस्लिम लोग जो गैर मुस्लिम है, मैं उन सबको भी देखा हूं तो अपने इस्लाम की, अपने धर्म को इज्जत देता है। वो इंसान इज्जत देता है, लेकिन वो इंसान समझता है, अपने भी धर्म को समझता है और मेरे धर्म को भी वो समझता है। वो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चड्डी बनियान पहन करके और पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। वो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते हम, वो नाम लिया जाता है। और आदमी को देखकर, ये मुसलमानों को देखकर, दाढ़ी वाले को देखकर और कौन से वो नारा लगवाते हैं। बेवकूफ, कितने वो बदनसीब है। उस जमाने में जो राम पैदा हुए थे तो राम क्या ये सिखा के गए थे तो मेरा नाम लेकर उसको मारा जाए, काटा जाए, दाढ़ी को काटो, उसको कत्ल कर दो मेरा नाम लेकर के? ऐसा नहीं। ये बदबख्त जो ऐसे लोग हैं ये अपने राजनीतिक करना चाहते हैं और इसके पीछे कोई और ऐसे इंसान है जिससे करवाया जाता है। पैसे मिलता है, रुपया मिलता है, लोग पैसे की वजह से लालच में आकर ऐसे काट करते हैं, ऐसे काम करते हैं। लेकिन याद रखें ये हिंदुस्तान मेरे अब्बा का हिंदुस्तान है, किसी का अब्बा का नहीं, मेरे अब्बा का। आपका भी अब्बा लगा, मेरा भी अब्बा लगा। वो कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। भाई भाई हुए तो भाई भाई का आधा हिस्सा हो जाएगा, लेकिन हक मेरे जितना आपका हक है उतना मेरा भी हक है इस हिंदुस्तान में रहने की। अगर कोई कहता है कि नहीं हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ऐसे ख्याल करने वाला सख्त वो शैतान है।
सभी लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जानते हैं कि सबसे दुनिया में हिंदुस्तान में कदम रखने वाला अगर कोई है वो है हजरत ख्वाजा गरीब, वो है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कदम रखने वाला आदम अलैहिस्सलाम, सबके अब्बा, अब्बा का अब्बा, अब्बा का अब्बा। पूरे खानदान को अगर लेके जाए तो वहीं जाके रुक जाता है, वहीं जाके पहुंचता है, वही मेरा सबका अब्बा है, समझे? लेकिन वो कैसे बदबख्त इंसान है वो लोग, राम का नाम लेकर के मुसलमानों का हैरान करता है। वो सीधे साधे इंसान, जो ज़ईफ इंसान, जो छोटे मासूम बच्चे जहां मिलते वहां पकड़ करके इस तरह से हरकतें करते। याद रखें, हम मेरे इस्लाम में, अपने इस्लाम में किसी को गलत बोलने का सजा नहीं दिया गया है, न उसको सिखाया गया है तो ऐसे बोलना किसी गैर मुस्लिम को, किसी को नहीं कहा जाता है। हमारे कितने साथी किराम है, कहीं मार्केट हम जाते हैं या किसी से मुलाकात करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी अदब करते हैं, हम भी उनकी अदब करते हैं, इज्जत वो भी देते हैं, हम भी इज्जत देते हैं। लेकिन आज तक आपस में 15 साल तक हम दोनों की दोस्ती है, लेकिन आज तक कोई मोहब्बत में दरार नहीं हुआ है, आज तक मोहब्बत में दरार नहीं हुआ है। वो कैसे लोग हैं? याद रखें, अल्लाह पाक पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। आप अपने इस्लाम पर चले, हम भी अपने इस्लाम पर चलते हैं, आप अपने धर्म पर चले, हम अपने भी धर्म पे चलते हैं। यही एक हिंदुस्तानी का सबूत है और ये खूबसूरती है। अपने अपने धर्म को पालन करें, हम अपने धर्म को पालन करते हैं, यही एक हिंदुस्तानी का एक खूबसूरती मिसाल है।